Yes, ma'am. Yeah. A very warm welcome, a heartfelt welcome to all of you, all of us Guru Bhais and Guru Behin. And each of us has so many gurus that we are, this is what we're going to see with Madam also telling us her little experiences of the spiritual path where you see there's something very interesting and unique in her case, I feel, and that is we talk of people being born with a silver spoon in their mouth. Madam has been born with spiritual people all around. Firstly, her own parents, Maya Bapa, themselves were in the spiritual search even when she was born. And to add to that, they were in search of gurus who would take them forward in their life. And automatically, so many things happen to the children or families who are attached. And this is what she's going to share with us, her experiences with uh, Tyag Murti Harihara Tirthaji. This was the main Swamiji in their life, the main guru in their life. And I would invite her. Thank you so much. So I'm going to speak about my... And Shashi, maybe you would like to introduce yourself a bit, because Lakshmi somehow forgot to introduce you. Okay. So my name is Shashi Kapila, and I have been a colleague of Shri Brahm Prakash Gaurji in the Income Tax Department. And prior to that, I was a lecturer in Delhi University in the Department of Philosophy. So I thought as I narrate the instances, you will get to know me a little better. So I can start. Now, the way in which we used to do prostration before the Guru in our ashram, I will start from that. So we used to start in this way. Om Namostavanantaya Sahasramurtaye Sahasrapadakshishirorubahave Sahasranamne Purushaya Shashvate Sahasrakoti Yugadharine Nama Nama Kamalanabhaye Namaste Jalashayine Namaste Keshavananda Vasudeva Namostute Vasana Vasudevasya Vasitam Bhuvanatrayam Sarvabhuta Nivasosi Vasudeva Namostute Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhasha Krito Vande Bhagavanto Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadvyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Hari Om Yagyena Yagyamaya Janta Devastani Dharamani Prathamanya Sanna Dehanakam Mahimana Sachanta Yatra Purve Sadhyaha Santi Deva Rajadhirajaya Prasaya Sahine Namo Vayam Vaishvanaya Purmahe Same Kaman Kam Kamaya Mahyam Kameshvaro Vaishvano Dadatu Kuberaya Vaishvanaya Maharajaya Nama Vishvatas Chakshurut Vishvato Mukho Vishvato Bahurut Vishvatas Pat Sambahu Bhyam Dhamati Sampatatrair Dhava Bhumi Janyam Deva Eka Nana Sugandha Pushpani Yatha Kalodbhavani Cha Bhaktya Dattani Pujartham Grihana Parameshwara Om Namah Parvati Pate. So I'll just start straight away with a bit of my own autobiography. So this is the year 1969. The day was 14th of November, a Friday. And I was second year in college. And I was walking up and down, studying for my exam. And since it was 14th November, it was a holiday. And as I was studying for my exam, suddenly on my bedroom window,
Lady Pranvananji, Lady Swamini, her name was Swami Pranvananji, who was known to my mother from Lahore and who had taken sannyas during the period of partition. So she was known to our family. She suddenly knocked at the door and she said, Shashi, darwaza khol, darwaza khol. So I looked up, I said, Swami Pranvananji. She said, Shashi, jaldi darwaza khol. Tere Guruji aaye hain. So I said, I have no guru. I was a frivolous, foolish second-year-old college student who had no serious interest other than doing well in the exam and probably having fun. So, mere koi guruji nahi. She said, darwaza khol, tere guruji aaye hain. So I said, oh, mommy, daddy had just gone to Rishikesh in the month of April or May, and they had come home and they were very gleefully telling all 4 of us children that, you know what happened, mummy and daddy ne guru dharan kiya hai. So 4 of us children thought it was absolutely of no interest to us. And we said, okay, our parents want to do these things, guru dharan karna and archaic thing is fine with us. So we just ignored it and took no notice of it. So then I suddenly remembered that, oh, mummy, daddy ne April, May mein Rishikesh gaye the and they were boasting to us ke guru dharan kiya hai. So I ran into my parents' room and I said ke Swami Pranvananji खिड़की खटका रहे हैं कि दरवाजा खोलो, मेन दरवाजा, गुरुजी आए हैं. हमारे कहते आपके गुरुजी आए हैं. So my father at that time was running about 102 fever and my mother also wasn't well, so they were both in bed. So both jumped out of bed and ran barefooted to the front door. Now I never really saw them running barefooted in this manner spontaneously to the front door. So I said, this is very interesting. So I also ran after them and we opened the door and there was a saint standing with a radiant face. I mean, it was shining. It was so radiant and on his both sides were 2 Mahatmas. So, Swami, my father opened the door. She said, Swami ji, aap andar aaye, because he was the guru jinko inhone dharan kiya tha. So Swami ji came and sat down. And then it was around 10:30 Friday. So they, in those days, traveling from Rishikesh to Delhi took easily 7 to 8 hours. So it was obvious they must have traveled for about 8 hours. So my mother quickly told me, she said, Shashi, go and make chapatis for him, because I was famous in my house for making very interesting chapatis. Like I would take atta as small as a marble ball and make a pulka out of it, a full pulka. So she said, give the best to Swamiji, so you go and make rotis. So I ran into the kitchen and I took the tiniest piece of atta and I made 2 pulkas. And I thought Swamiji will be so happy, he'll eat about 10, 12 of them. And he'll say, oh, what lovely pulkas, he's never eaten in his life. So I was boastfully thinking like this. And Mummy laid the plate for my Swamiji and we gave him the pulkas. And after 2 pulkas, he says, no more. I don't take more than 2 pulkas a day. So I got a shock. I said, ye maine kya kar dala? Because ye to bhuke reh gaye, only 2 small. I mean, even, it would not satisfy a child. So I went and I apologized to him. I said, this is terrible. And I made up my mind in the evening, I will make up to him. I'll make big rotis and give it to him so it satisfies his hunger. So I was waiting for the evening, and when the evening time came, he said, hum din mein ek hi baar khana khate hain, 2 baari khate nahi. So that means that was the end of the matter. That's the only time I gave him those pulkas. By this time, word spread all over Delhi that Swamiji has come from Rishikesh to Delhi. He was a very well-known Mahatma in Uttarakhand, and my parents had just got to him, so he had come to our house. And by this time, the evening came, already a lot of people had come to our house. So then Swamiji asked me when I went to ask him for food. He said, "Aap puja karoge?" I said, "Hanji Swamiji, kar lenge." So he made me sit down, and our puja routine was just 5 minutes of doing Om Jai Jagdish Hare or something in the house. Puja was done daily, but I used to light puja. So I sat down there, and for 1 hour, they did full Shiv Mahimna Stotra, Aarti, Mantra Charan, Guru, the whole, for 1 hour it went on. So I made up my mind that next time I will not go to the puja sthan because I didn't want to do such lengthy pujas. So after that,
then the people who came to our house were very interesting. They were mostly from Paharganj, and they were rather poor people, because there was this lady Veerawali who used to speak so beautifully and melodiously. So she came, and this is the second day Swamiji is there, and they took over the kitchen, took over everything, and after that they gave him food according to his sannyas rules, which were known in Rishikesh. So she said, ये एक बात आपको बतानी है कि आप ऐसे ही स्वामी जी को गुरु मत धारण करना। जब आप चवन्नी का कसोरा लेते हो, उसको भी ठोक ठोक के देखते हो कि ये लीक तो नहीं कर रहा, और उसको अगर लीक करता आप फेंक देते हो। तो ये तो आप जब गुरु धारण करते हो तो आप अपनी जो जीवन है उनको समर्पण कर रहे हैं कि वो आपको पथ पर लेके जाए। तो उनको ठोक ठोक के खूब उनका इम्तिहान लेके खूब परिचय करके देखना कि ये आपके गुरु बनने लायक हैं कि नहीं। और इसमें एक ही चीज काम करती है, और वो है विवेक। कभी भी किसी के कहने में मत आना, आप अपने गुरु जी की परीक्षा लो। सो शी thereby guided us what Swamiji has said. किसी को भंगने कपड़े में देख लिया तो वो गुरु नहीं बन जाता, किसी ने दो मीठे शब्द बोल दिए तो वो गुरु नहीं बन जाता। तो उसके बाद स्वामी जी काहे को हमारे घर आए थे? दैट वाज बिकॉज वो गंगा जी में स्नान करने रोज जाते थे, नित्य गंगा जी में स्नान करने जाते थे। सुबह जाके 3 बजे 4 बजे स्नान करते थे, और खुला स्नान करते थे। तो उनके कान में वो गंगा जी का पानी और शायद वो नहाने में थोड़ा मड या कुछ इकट्ठी हो गई, तो उसमें कानों में पस भर गई थी। और ऋषिकेश, मैं 1969 की बात करती हूँ, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, कोई दुकानें आसपास आश्रम के नहीं थे। और ये मुनि की रेती पर जो आश्रम है, बस आश्रम में ही जो आपस में ज्ञान था और वो उसी से ही वो अपना मेडिकल फैसिलिटीज करते थे। तो काफी देर ये चलता रहा, तो उन्होंने देखा कि उनके कान में सीरियस प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा आप दिल्ली जाओ। तो उस वजह से वो हमारे घर आए। So when he came to our house, he started staying with us. In the 3 months, I must tell you what happened. सबसे पहले मैंने स्वामी जी से जाके पूछा, स्वामी जी ये जो आपका चेहरा इतना चमकता है, आप कुछ लगाते हैं? तो वो कहते नहीं, and we were very foolish children, कहते नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप यहाँ ये पानी है, आप अपना चेहरा धो के दिखाओ। तो उन्होंने साबुन से चेहरा धोया, हाथ धोए, his face was shining more. So then I realized this is something extraordinary. मैंने ऐसा radiant, shining चेहरा जैसे सूरज की तरह दमकता है कभी नहीं देखा था। उसकी मैं आपको अभी मूर्ति दिखाऊंगी, जब पद्मा आपको उनका चेहरा दिखाएगी कि वो कैसे दिखते थे सदा सभी के लिए। और उसके बारे में बहुत लोगों ने वर्णन किया है, इंक्लूडिंग इन सम बुक्स, वेदांत रत्नाकर वगैरह में उनके बारे में लिखा है। वो आते ही हमको सामने सामने प्रत्यक्ष जो दिखता था वो मैं बताती हूँ। वो पैसे को नहीं छूते थे, उन्होंने कभी पैसे को छुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा स्वामी जी आप पैसे को क्यों नहीं छूते, फिर कैसे व्यवहार चलेगा? तो कहते पैसा ऐसी चीज है जो किसी का लाज नहीं करती, वो ऊंचे नीचे का लाज नहीं करती, माँ बाप बेटे का लाज नहीं कोई किसी का ये किसी तरह से लाज नहीं करती, और हर जगह दुश्मनी फैलाती है। तो जो ऐसी गलत चीज है हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज, मैंने सोचा ऋषिकेश से आए हैं तो इंग्लिश में बात नहीं करते थे। तो मैंने कहा स्वामी जी आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप पढ़ क्यों नहीं लेते, मतलब इंग्लिश में नहीं करते, हिंदी में ही बात करते हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि इंग्लिश एक भाषा है जो विश्व में प्रसिद्ध भाषा है, और इस भाषा से जो दुनिया में छल कपट है, जो छुपाना है, जो दिखाना है, जो करना है नहीं करना, सब इस भाषा से प्रयोग होता है। इसीलिए हम इस भाषा का स्पर्श नहीं करेंगे अपनी जुबान से। और जो संस्कृत भाषा है उसका कार्य सिवाय ईश्वर की भक्ति और ज्ञान देने के लिए ही प्रयोग हुआ है। इसलिए उस भाषा का जो ज्ञानदेही है, जो सबको शांति देने वाली है, जो लोक का कल्याण करने वाली है, उस भाषा का हम स्पर्श करते हैं।
तो उससे स्पष्ट हमको एक दो चीजें, तो मतलब उनके आने से ही इतनी चीजों का फर्क पड़ने लगा कि हम थोड़ा सोचने लगे इस डायरेक्शन में। और उस समय में मेरी उम्र थी, I would have been 20. My elder sister was 21. She was third year college. I was second year college. And my brother was about 15 or 16 years. And my youngest sister was 13 years. And in this time, when he came, 3 महीने के बाद जब वो गए, हम सबको कंठस्थ करवा के शिव महिम्न स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम पूरा सिखा के चले गए थे. And my sister 13-year-old was conఠस्थ in these स्तुतिज ऑफ शिवा. अब इसमें जैसे स्वामी जी आए, बहुत चीजें हमको नजर आने लगी कि हम अगर नास्तिक भी हो तो सामने प्रत्यक्ष कुछ और नजर आता था. तो स्वामी जी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लेके गए और वहाँ वो डॉक्टर्स ने उनके जब कान देखे तो कहा कि महाराज जी के कान में इतना पस है कि अगर घोड़ा भी होता ना वो भी चौंक जाता. वो उसको सहन कैसे कर गए हैं. तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर इतना रेडियंट है तो कुछ पता नहीं लगता. फिर उन्होंने एग्जामिन किया कि इतना ज्यादा पस है कि शायद ब्रेन के पास पहुंच गया है. तो फिर उनका ऑपरेशन डॉक्टर एसके कक्कड़ ने किया था और उन्होंने कहा कि स्वामी जी को कि हम आपको एनेस्थीसिया देंगे. तो स्वामी जी ने उनको कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं. तो उससे एक चीज प्रत्यक्ष सामने नजर आ गई कि स्वामी जी को देह बुद्धि बिल्कुल ही नहीं थी. मतलब देह में जो कुछ हो रहा है उसमें दुख दर्द वगैरह हो रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था. देह अपना काम करती है और स्वामी जी एकदम विरक्त हैं और सब चीज को खाली साक्षी रूप से देखते हैं. ये हमारे सामने आया उस छोटी उम्र में हमने जब देखा. तो वो फिर उनका जब ऑपरेशन हुआ, स्वामी जी ने उनका जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर एसके कक्कड़ थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड, ENT हेड थे, बाद में उनके पूरे डायरेक्टर बन गए. तो उन्होंने कहा कि इनकी सारी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट हैं और उनका ऑपरेशन हुआ. अब जब ऑपरेशन हो गया तो एक नर्स और वो सब हॉस्पिटल के लोग बहुत उनसे प्रभावित होने लगे. तो एक आदमी आया उनके पास जो थोड़ा व्हील चेयर पर आया और वो कहता है स्वामी जी को कि उसने नर्स से पूछा कि इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कोई महात्मा आए हैं. तो उन्होंने कहा हाँ आए हैं. कहते वो रूम नंबर 702 में है. वो कहती हाँ. तो कहते मेरे को उनके पास ले चलो. वो आया व्हील चेयर पर. तो ये सब मतलब जो सामने देखी चीज मैं बता रही हूँ. तो वो आके रोने लगा. तो स्वामी जी को कहता है स्वामी जी मेरे टांगों में बहुत परेशानी है और 9 महीने से मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती हूँ, सारे पैसे खत्म हो गए और मेरी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा. और कल रात को मैं रोता रोता सोया तो मेरे को स्वप्न में मेरा जो गीता पूजा का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है उस पर आपका चेहरा नजर आया और जैसे आवाज आई रूम नंबर 702 में जाओ, वहां आपका कल्याण होगा. तो वो कह के स्वामी जी के पास आया. तो स्वामी जी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि आपसे आपकी पूजा में कुछ त्रुटि हुई है और बताया क्या हुई है. और फिर उन्होंने कहा अब आप ऐसे ठीक करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. तो उसके बाद वो शायद 1 महीना रहा वहां हॉस्पिटल में. फिर उसके बाद हमारे घर आया था स्वामी जी को मिलने. तो स्वामी जी के ऑपरेशन के बाद स्वामी जी घर आ गए और उनका कन्वेल्सिंग पीरियड था तो उसमें हमारे घर में रहे और बहुत उस समय में महात्मा हमारे घर आने लगे. इनका नाम सुन के सारे शिवानंद के महात्मा, स्वामी चिदानंद वगैरह सारे कैलाश आश्रम के महात्मा हमारे घर आने लगे और सभी कहते कि ये बड़ी अद्भुत विभूति है जो आपके घर आए, स्वयं महादेव आ गए हैं. तो एक तो हम सुनते थे, बाकी ये हमने स्पष्ट जो देखा था स्वामी जी जैसे कि कहीं गए हैं तो पहले ही कोई चीज उनके लिए वो बनी हुई होती थी. रास्ते में जाते थे तो कुत्ते उनको सूंघ के उनके पीछे पीछे चलने लग जाते थे. और ये जो 3 महीने हैं उसमें ये 2-3 चीजें जो सामने की हुई हैं ये मैं बताती हूँ. एक बार मेरी बड़ी सिस्टर आके स्वामी जी के पास आके एकदम शी बर्स्ट इनटू टीयर्स. तो स्वामी जी पूछते हैं क्या बात हुई.
सो शी सेज मेरे फादर को ना बहुत सीवियर माइग्रेन है, उसे सहारा नहीं जाता, तो शी स्टार्टेड क्राइंग. तो समझे पेटेड हर एंड सेड very sweetly, he said, अरे नारायण इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए. So he petted my sister on the head, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद मेरे फादर का माइग्रेन परमानेंटली डिसअपियर होगा, वो आया ही नहीं. तो ऐसे मतलब ये जो स्पष्ट चीज है ये हुई थी. फिर मेरा भाई ना, हम तीनों बहनें नीचे सोती थी, मेरा भाई ऊपर के कमरे में सोता था, और उसमें वो कहता था कि ये घर हॉन्टेड है. वो नया घर बना था हमारा, तो कहता है ये घर हॉन्टेड है, इसमें कई बारी मेरे को लगता है कोई आके मेरा गला दबा रहा है, कई बारी वो सारी किताबें जो पढ़ी है ऑफिस में वो सारी गिर गई हैं, कभी कुछ, ऐसे बार बार वो कंप्लेन करता था. तो स्वामी जी जब आए तो उसने स्वामी जी को ये बताया. तो स्वामी जी कहते अच्छा, कहते हाँ, हम जब एक बार ऐसे आराम कर रहे थे तो हमने काला कुत्ता देखा और वो भौंकने लगा. हमने बोला चल हट, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है. उसके बाद वो घर हॉन्टेड या जो भी था, जो भी नेगेटिव फीलिंग थी, वो भी डिसअपियर हो गई. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट एरिया घर का जो है वो रसोई है. तो रसोई के शौच में वो बहुत लगे कि इसमें सुच्चमपना होना चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए, बर्तन जूठे नहीं रखने चाहिए, और स्वयं आप अपने आप करो. तो किचन को जो अहमियत दी और उसके दर्जे माँ को जो अहमियत दी, वो उन्होंने हमको सिखाई. मतलब ये ऑर्डिनरी लाइफ में 3 महीने में चलते चलते सारे घर को परिवर्तन करने लगे. तो उसके बाद स्वामी जी जैसे ठीक हुए 10 फरवरी में वो वापस चले गए. और ये छोटी छोटी बातें जो हुई, तो हमने देखा कि ये तो भाई मतलब सचमुच में ही अद्भुत कोई शक्ति है. फिर उसके बाद कैलाश आश्रम जब वो चले गए तो हमारा भी मन ना लगे, तो हमने बहुत फ्रीक्वेंटली कैलाश आश्रम जाना शुरू कर दिया और वहां रहना शुरू कर दिया. अब कैलाश आश्रम में जो हुआ था उसका मैं थोड़ा सा दिनचर्या बताती हूँ. वो सुबह 3 बजे उठ के गंगा जी में स्नान करते जाते थे, रात को ध्यान में मग्न रहते थे. मेरे को पता नहीं वो सोते कब थे, और सदा उनके चेहरे पर जैसे कि तेज रहता था, और प्रसन्नता और प्रेम का तेज रहता था. तो ये कैलाश आश्रम के बारे में भी मैं कुछ बताती हूँ. कैलाश आश्रम मुनि की रेती ऋषिकेश में जो है, वो सबसे तो नहीं कहूंगी पर रिकग्नाइज बड़ा रिनाउंड एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग है ब्रह्म विद्या की. और इसमें आदि गुरु शंकराचार्य का जो परंपरा है, वो ट्रेडिशन अद्वैत वेदांत का ही परंपरा है, और उसी को ही वो पढ़ाते हैं. और उसका पठन पाठन एटलीस्ट 250 साल से ऊपर ही होगा, वो चल रहा था, स्वामी धनराज गिरी से हो रहा था. तो जब हम ऐसी पीठ पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां बहुत भारी विभूतियां हैं. वहां एक स्वामी विष्णु देवानंद जी हैं जिनको परमहंस मानते थे, शास्त्री जी हैं, स्वामी चैतन्य गिरी जी, स्वामी जी हैं, और ये तीनों बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान महात्मा थे कि इनको गूढ़ तरह से सारे शास्त्रों का पता था. और स्वामी जी हमको ये पता लगा कि स्वामी जी को बार बार मंडलेश्वर बनने का पद दिया था, और उन्होंने हर बारी उसको रिफ्यूज कर दिया था. उन्होंने कहा जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी पद है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं. हमारा एक ही निष्ठा है, और वो ब्रह्म को पाना और उसके हेतु सब संसार का कल्याण करना. हमको किसी प्रपंच में नहीं पड़ना. और इतनी दृढ़ थी उनकी निष्ठा उसमें कि ऐसे हुआ, उनके बड़े महाराज जी ने भी गुरु जी ने आज्ञा दी कि आप मंडलेश्वर बनो, उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया. फिर शास्त्री जी थे स्वामी चैतन्य गिरी जी, उनको कहा आप मंडलेश्वर बन जाओ. वो जैसे 2-3 महीने मंडलेश्वर बने, और उन्होंने कहा मेरे को इसमें से कुछ लेना देना नहीं, मेरे को खाली ईश्वर की प्राप्ति चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, अपनी खड़ाऊ गंगा जी के पास छोड़ के और कुछ कपड़े छोड़ के वहां से निकल गए. और लोगों ने सोचा कि स्वामी चैतन्य गिरी जी को किसी ने गंगा जी में धक्का देके मार दिया या कुछ किया, और शायद लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि शायद स्वामी हरिहर तीरथ जी ने किया होगा, उनको शायद वो पद के कारण. तो पुलिस आ गई आश्रम में,
और स्वामी जी को पूछती हैं कि आपने किया, बहुत पूछताछ की। तो स्वामी जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया। और उसमें बड़े महाराज जी जो उनके गुरु थे वो बहुत उनको बहुत फिक्र हो गया कि महाराज जी भाग ना जाए इधर से। तो स्वामी जी ने कहा अपने गुरु जी को, महाराज जी को, कि हम कहीं नहीं भागेंगे, मान और अपमान हमारे लिए दोनों समान है। कोई हमारी निंदा करे या कोई हमारे को प्रसन्न करे, दोनों हमारे लिए एक समान है। ये स्पष्ट देखी हुई ऐसी विभूति को मैंने स्वयं देखा है। और इसमें यहाँ तक पुलिस आके उनको कहती है कि हम आपके हाथ में हथकड़ियां देखना चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं आपने जो देखना आप देख सकते हैं, बड़ी खुशी से देखो, और हम आपको जो है हम साफ साफ सच्चा बता देंगे। तो ऐसे चलते चलते फिर अब जो 4 नियम हैं धर्म के, उसके बारे में बताती हूँ। और उसके अनुसार, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार मैं बताती हूँ स्वामी जी का क्या, किस तरह से उन्होंने स्पष्ट उसको प्रदर्शन किया। तो कहते सत्य युग में ना 4 पिलर्स हैं धर्म के। सबसे पहला है सत्य, ट्रू। दूसरा है तपस्या, वो भी महाराज जी ने स्वयं एकदम एक साक्षात प्रदर्शन कराया उसका। तीसरा है शौच, प्योरिटी, क्लेनलीनेस, थॉट में, स्पीच में, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, सब चीज में उसका प्रदर्शन कराया। और चौथा है करुणा, कंपैशन, प्रेम, उसका स्पष्ट प्रदर्शन कराया। तो आप किसी भी मापदंड के से स्वामी जी को आप ठोक ठोक के परिचय करो तो आप देखो वो हर चीज में एकदम उससे आगे ही निकले हैं। तो उनके बारे में उस वक्त कहा जाता था कि सदियों में एक ऐसा महापुरुष आता है जो साक्षात ईश्वर का प्रदर्शन कराता है, और जो जो शास्त्रों में नियम लिखे हैं वो उससे परे ही होता है, उससे कमती नहीं होता। वो मैंने देखा था। तो सबसे पहले जो सत्य है उसके बारे में स्वामी जी कहते थे कि सत्य क्या चीज है, कि वो आदमी सच्चा है जिसका अंदर और बाहर एक है। जो अंदर बाहर से एक है वो आदमी सत्य है, और उनका झूठ से, चीटिंग से कोई लेना देना नहीं था। वो एकदम जैसे कि सच्चाई का प्रतीक थे। फिर उसके बाद तपस्या। तो तपस्या के बारे में, उनके बारे में मैंने स्वयं जो देखा है वो बताती हूँ और जो सुना है वो बताती हूँ। स्वामी जी खाली 5 साल के थे जब वो घर से चले गए। उनके दिल में निष्ठा थी ईश्वर को पाने की। तो इसके खोज में वो बनारस पहुंच गए, और बनारस में उन्होंने एक महात्मा देखे, और उन्होंने देखा कि ये तो अद्भुत ही कुछ व्यक्ति हैं। उनको ब्रह्मचर्य निष्ठा का उन्होंने संन्यास दे दिया, और उसके कारण स्वामी जी जैसे कि 5 साल से 18 साल तक ब्रह्मनिष्ठा का एकदम निष्ठा से उसका पालन किया। उसके बाद वो 18 वर्ष, एक नियम है संन्यास का कि 18 वर्ष से पहले आप संन्यास नहीं ले सकते। तो 18 वर्ष तक जैसे उनको संन्यास मिला तो उसके लिए इच्छुक थे, वो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। फिर उसके बाद संन्यास के बड़े नियम होते हैं, और उसमें वो कहते हैं हमारा सिवाय ईश्वर प्राप्ति से आगे हमारा और कोई काम नहीं है। तो उसमें वो बहुत गुरुओं को ढूंढने लगे कि हमको वेदांत सिखाएं, और उन्होंने देखा कि गुरु जो हैं बहुत इंटेलेक्चुअली, कोई भी बात है, कोई श्लोक है, उसका बता देते हैं, पर उसका जो इम्पोर्ट है असली, उसका जिसे कि उसका जो लाइट है वो प्रदर्शन नहीं हो रही। तो इसकी खोज में उन्होंने सुना कि ऋषिकेश में ऐसे कुछ महात्मा हैं, तो वो पैदल चल पड़े वाराणसी से। तो पैसा को तो वो छूते ही नहीं थे, 5 साल की उम्र से पैसा ही नहीं छुआ। दूसरा, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था, तो वो किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। तो किसी ने उनको एक रेलवे स्टेशन पर देखा और बहुत गौर से देखा। फिर वो कुछ जानने वाला आदमी होगा, वो आके स्वामी जी को कहता, स्वामी जी
आपको भूख लगी है, हम कुछ भोजन दें, तो उनको लेने की आदत ही नहीं थी। तो वो थोड़े चुप रह गए। तो आदमी पहचान गया कि ये सन्यास का नियम है, कुछ मांग नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, अगर आपके सामने भोजन ला दे तो क्या ये देह स्वीकार करेगी? तो स्वामी जी कहते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो भोजन भी इतना सुच्चा हुए तभी खाएंगे, नहीं तो वो खाते ही नहीं थे। तो भूखे रहते रहते, ठिठुरते पैदल चलते चलते, गाड़ी में एक स्टेशन टिकट मास्टर को, मेरे पास कोई टिकट नहीं, तो अगर आप चाहते हो मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। ऐसे करते करते वो ऋषिकेश पहुंच गए। और एक वो बड़ का पेड़ था, वो वहां सोमेश्वर महादेव, वहां नीचे रहने लगे। फिर सुना कि कैलाश आश्रम में स्वामी विष्णु देवानंद जी वेदांत का बहुत अच्छा पठन पाठन करते हैं। तो वो ऋषिकेश पहुंच गए स्वामी जी के पास, और वहां जाके चुपचाप करके बैठ गए, और वहां स्वामी जी पढ़ाई करा रहे थे। तो देखा कि स्वामी जी जैसे वो पढ़ाते थे, वो सन्यासियों कहते थे, महात्माओं कहते आप लिखो, तो लिखते थे कि स्पष्ट हो जाए। जैसे उन्होंने कहा लिखो, तो वो आंख उठा के देखते, दोबारा बोलते, तो देखा कि स्वामी जी ऐसे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ लिखेंगे? उनके पास पेपर पेंसिल नहीं था। कहते नहीं, अभी ऐसे ही काम चल जाएगा। तो कहते अच्छा फिर बताइए। हमने क्या बताया? उन्होंने स्पष्ट पूरा बता दिया। फिर उनको किसी ने एक कागज फाड़ के और एक पेंसिल दे दी, उसमें कहा लिखो। तो उन्होंने लिखा। फिर सबकी जब वो श्लोक की करेक्शन आई, तो देखा कि स्वामी जी की श्लोक में कोई त्रुटि ही नहीं थी। तो वो पहचान गए कि ये साधारण नहीं है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी अगर आप हमारी बात मानो, आप हमारे साथ ही रह जाओ। तो वो कैलाश आश्रम में रहने लग गए, और उनको फिर उन्होंने जाने ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी विष्णु देवानंद जी के व्याख्यान से, वेदांत का व्याख्यान से हमें एकदम चमत्कार आया, और पूरा जो ज्ञान था स्पष्ट हो गया, और एकदम से लाइट आ गई। उसके बाद वो स्वयं पठन पाठन में लग गए, और वो पढ़ा रहे थे। तो उस पठन पाठन का हमने बहुत सुना है। और दूसरा था कि वो हमेशा सुबह 6:30 बजे सभी महात्माओं को पठन पाठन कराते थे। जो कुछ पढ़ाते थे वो स्पष्ट होता था। तो इसका मेरे साथ जो हुआ है, उन्होंने मेरे को शिव तांडव सिखाया था, और मेरी सिस्टर को शिव महिम्न स्तोत्र एकदम कंठस्थ करा दिया था, गीता पढ़ाई। पर हम उसमें थोड़ा सा फ्रिवलेस थे, तो हम सीरियसली उनकी पढ़ाई पर नहीं जाते थे। पर जो भी खेल खेल में ही देखा वो सिखा देते थे। तो उसमें जैसे कि एक बार मैंने कहा कि स्वामी जी मेरे को घर जाना है, तो हमारे जान पहचान में कोई है, वो मेरा टिकट खरीद दे, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे को नहीं तो रेलवे स्टेशन जाके खरीदना पड़ेगा। तो उसको कह दूं? हाँ। तो थोड़ा चुप हो गए। कहते हाँ तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी भी बहुत है। फिर कहते आप ऐसे करना, 4 कदम चल के फिर बैठ जाना, फिर आगे 4 कदम चल के फिर बैठ जाना, सीढ़ी 2-2 करके नीचे उतरना, 2-2 करके, फिर वहां खड़े हो जाना, टांगा आ जाएगा, उसको लेके फिर रेलवे स्टेशन पर जाओ और अपना टिकट खरीदो। फिर मेरे को बहुत जैसे सीरियसली देख के थे, आपको भी तब मानेंगे जब आप किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाओगे, किसी से कुछ मांगोगे नहीं। तो ऐसे करते करते वो हमारे को भी बदलने लगी। तो हम दिल्ली से गए हुए बिगड़े हुए लोग थे, तो वहां हमको गर्मी लगे। तो एक बारी मैंने बोला, स्वामी जी यहाँ सारे नलकों का पानी ना गर्म है। कह रहे अच्छा थोड़ा सा गौर से देखो, वो एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे जो नलका है ना, उसका पानी जाके ले लेना, वो ठंडा है। और फिर कुएं से पानी निकालने, मतलब वो जो बेसिक्स थी लाइफ की, वो सिखाना शुरू कर दिया। और वो नंगे पैर हिमालय में घूमने जाते थे, जूते वगैरह तो पहनते नहीं थे। तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों उनके पीछे पीछे नंगे पैर एक दिन भागे, और 3 दिन हमारे पैर दुखते रहे, उसमें कांटे चुभ गए, बहुत दर्द हुई। तो उससे पता लगा कि उनका तप कितना है। उनकी जो पाँव के जो तलियां थी ऐसे सख्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जूते नहीं पहनाए, मतलब किसी किस्म का अपने आप को आराम नहीं दिया। तो अब इसके शौच के बारे में
एकदम खाने पर वो बहुत ध्यान देते, खान पान की सुचमपना हो। पर इसमें वो कहते हैं कुछ त्रुटियां भी आ जाती हैं कि कई लोग शौच के बहाने मतलब सफाई क्लेanलीनेस के बहाने ऑब्सेसिव हो जाते हैं। जैसे कोई लोग हाथ ही धोते रहते हैं, मुंह धोते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं, ऐसे नहीं। शौच का मतलब है कि हर चीज की सफाई होनी चाहिए, सोचने का, बोलने का, हर चीज का जो सफाई है उसको शौच कहते हैं। जुबान पर शौच हो, खाने में हर चीज में सुच्चापन हो, उसको शौच की अहमियत और उसकी त्रुटियां भी, मतलब दोनों पार्ट्स बताए। फिर करुणा के बारे में मैं बताती हूँ। कंपैशन उनका ऐसे था कि सारी दुनिया उनके लिए एक थी, तो वो सभी को एड्रेस करते थे, या महादेव के नाम से या नारायण के नाम से। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ कि हम एक बारी गंगा दुसेरा हुआ, तो स्वामी जी साथ गंगा जी के किनारे गए और देखा कि गंगा दुसेरा पूजा करके हम वापस आ रहे थे, तो वहां सडनली स्वामी जी एक गऊ खड़ी थी उसके पास चले गए, उसको बहुत थपथपाया, कहते अरे नारायण, इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है। तो उनके गले में जो हार था उठा के उसको खिला दिया। फिर आगे चले तो हम भी साथ साथ चले, तो एक काला कुत्ता आया, वो सबको सूंघ सूंघ के फिर स्वामी जी को सूंघा तो खड़ा हो गया और उनके पीछे 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 चलने लगा और पूरा आश्रम तक आ गया। तो आश्रम का जब गेट आया तो स्वामी जी ने उसको कहा, अच्छा अभी महादेव आप यहीं रुक जाओ, वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो वो खड़ा रहा 2 मिनट, फिर वो कहता है अच्छा आप जाओ। फिर वो पीठ मोड़ के वो कुत्ता चले गया। तो ये तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ, मतलब मैं साथ में थी। तो एक और जैसे कि घटना, बहुत उनके बारे में चर्चा करते थे, एक स्वामी परमेश्वरानंद जी थे जो पहाड़गंज में रहते थे। वो कहते हिमालय में स्वामी जी घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो खाली दोनों ही जने थे और बहुत उनकी पगडंडियां, मतलब फॉरेस्ट में कोई लैंड पगडंडी कुछ नहीं होती, तो ऐसे वो चल रहे थे और बहुत नैरो जगह थी, एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ खाई थी। तो आगे जैसे गुजर रहे थे तो थोड़ा सा झाड़ियों में आवाज आई, तो पीछे मुड़ के देखा कि एक शेर आ गया है। तो वो बहुत घबरा गए। परमेश्वरानंद जी स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी पीछे शेर है। तो स्वामी जी कहते हैं हाँ, जंगल का राजा है, उसको तो जगह देनी चाहिए, वो चाहता है, वो हमारे से आगे जाना चाहता है, उसको रास्ता दे दो। तो वो साइड में हो गए और शेर उनको देख के आगे चले गया। तो ऐसे मतलब कि मैंने देखा है पेड़ों के साथ, पशुओं के साथ, सब चीज के साथ उनकी करुणा थी। तो उनके जो कमरा था ना, उसमें एक जाली सी थी, वो जाली पर ना जैसे कि मौसम, स्प्रिंग का मौसम आता है, बहुत सारे तितैये जाके अड़ जाते हैं। तो स्वामी जी क्या करते थे, उठते थे और कहते थे अरे महादेव, ओ उसको बड़ी जेंटली हटा के उसको बाहर जाके उड़ा देते थे। तो वो हम देखते थे कि तितैये के साथ भी वो बहुत ही जैसे करुणापूर्ण थे। तो उन्होंने, जैसे मैं उनके साथ रह रही थी एक बार, मतलब कि मैं आई हुई थी आश्रम में, तो कुछ वो पढ़ा रहे थे, तो वो मेरे को कहते शशि प्रभा, आप वो महादेव को वहां से निकाल के बाहर छुटकारा दे दो। तो मैंने कपड़ा लिया, वो वॉस्प को लिया और उसको मैंने छोड़ दिया। तब से मेरे को भी आदत हो गई कि वॉस्प को निकाल के छुड़वा देने की। उनको कभी भी मैं किसी द्वेष दृष्टि से देखती नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं ये देखा हुआ है। तो इसके बारे में तो बहुत कहानियां उनके करुणापूर्ण दृश्य की, वो सारे संसार को, सारे जगत को अपना ही मानते थे। और शंकराचार्य के जो वो सारी उनके महावाक्य थे उनको बार बार दोहराते थे और तो कहते थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म जीवो ना पर, ऐसे वो सबको समझाते थे। तो इसमें एक चीज की मैं विशेष 2-3 बातें बताना चाहती हूँ जो स्पेशल हैं। तो एक दिन मैं अकेली बैठी थी स्वामी जी के पास और कमरे के अंदर एक यंग सा आदमी, मेरी उम्र का होगा, शायद 2-3 साल बड़ा होगा, वो आया, आके वो स्वामी जी को पैर छू के रोने लगा। सो बहुत रोया, बहुत रोया। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ महादेव? तो उन्होंने कहा कि सारे लोग मेरे
वो कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो जाते जाते मेरे को रास्ते में किसी ने कहा कि यहाँ बहुत बड़े महात्मा हैं, तो मैंने सोचा चलो आत्महत्या करने से पहले महात्मा के भी दर्शन कर लूं। तो वो वहां आश्रम में आया, अकेला था, रो रहा था। तो स्वामी जी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। फिर कहते अच्छा जी, कहते अच्छा जी आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? तो कहता हाँ जी। अच्छा, किसकी हत्या करेंगे? ये देह की हत्या करेंगे? कहता हाँ। अच्छा, आपको ये देह में कहीं दर्द हो रही है, कुछ दर्द हो रही है? कहता नहीं। कहाँ दर्द हो रही है? कहीं भी एक किसी तरह से आपको ये तंग कर रहा है? कहता नहीं। फिर कहते इसकी हत्या क्यों करोगे? फिर किस चीज से आपको दर्द हो रही है? आपके ख्यालों से हो रही है ना, विचारों से हो रही है, तो उसकी हत्या करो, इसकी हत्या क्यों करनी है? तो वो थोड़ा चुप हो गया। कहता फिर कहते वो जो विचार हैं उसकी हत्या करनी है, और उसकी हत्या करने के लिए ये जो देह है ये तो बड़ा भारी साधन है। अगर आप इसकी हत्या कर दोगे और जो बुरे विचार हैं वो सदा ही आपके साथ रहेंगे, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकोगे। और कितना भारी पाप कर रहे हैं आप कि वो जो आपका दुखी विचार हैं उसमें आप सदा के लिए फंस जाओगे। आप ऐसे कभी भी आत्महत्या मत करना। आप अपने विचार जो तंग करते हैं उनको हटाओ। तो वो कहता कैसे हटाऊं? कहता वो हम बताएंगे, आप जाओ, अभी खाने की घंटी बज गई, जाओ खाना खा के आ जाओ, फिर हम आपको बताते हैं। तो वो चले गया। तो मैं बैठी रही, मैंने कहा स्वामी जी, अब मतलब मेरी भी इमेच्योरिटी थी, आई वॉज वेरी फुलिश एंड इमेच्योर। तो मैंने कहा स्वामी जी अगर कोई बुरा आदमी आपके पास आ जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप उसको अच्छा आदमी बना सकते हैं? तो कहते हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐसे कैसे करोगे? तो कहते हम उसकी स्तुति करेंगे। ऐसे स्तुति से वो बदल जाएगा? कहते हाँ, स्तुति ऐसी पावरफुल चीज है जिससे कहते देवी देवता भी वंचित नहीं है। आप जब देवी देवता पास जाते हो आप क्या करते हो? आप उनकी स्तुति करते हो, उनके स्तोत्र गाते हो, उनके गुणगान गाते हो, और वो प्रसन्न होके आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं, और हम किसी की स्तुति करेंगे तो वो क्यों नहीं ठीक हो जाएगा? फिर मैंने कहा पर स्वामी जी फॉल्स प्रेज भी तो ठीक नहीं है ना? वो कहते नहीं, फॉल्स प्रेज नहीं, इसमें ये है स्तुति जो होती है, आप जो उनमें गुण है और जो गुण लायक चीज है उसके बारे में बखान करते हैं, और वो सुनते 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 ये जो मन के विचार हैं उसमें लग जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं, और जो बुरे विचार हैं उनके लिए जगह नहीं रहती, और वो विचार जो हैं उससे आप में परिवर्तन होता है, और इसी से ही आप बहुत चीजों को पा सकते हैं। तो इसमें बहुत स्तुति की बहुत बड़ी महिमा है, इसको कभी नहीं भूलना। तो ऐसे बैठे बैठे स्वामी जी ने सुसाइड का भी डेंजर बता दिया, और उसका इस देह की ये देह जो है बड़ा भारी साधन है, और आदमी को परिवर्तन कैसे करना ये बता दिया। तो इसमें वो बताते थे कि जब आप ईश्वर की स्तुति करते हो, स्तुति में जो गुण हैं उसको सुनते, आप श्रवण और श्रुति से सुनते, श्रवण और बोलने से करते 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 वो गुण आप में आने लग जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर का गुणगान करो। तो उसमें उन्होंने जो स्तुति है, स्तोत्र है, भगवान की जो पूजा अर्चना है उसकी ब्यूटी बता दी। इसीलिए हम जब गुरु की महिमा गाते हैं तो जो गुरु के गुण हैं वो हमारे में आ जाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे बातों बातों में इतना ऐसे उन्होंने सिखाया, और इतनी जेनरोसिटी थी उनमें कि मतलब कई चीजें थोड़ी प्राइवेट है, थोड़ी मैं बता भी सकती हूँ कि ऐसे था कि मैं आईएएस के एग्जाम के लिए बैठी, और मैं जब क्लियर हुआ आईएएस का एग्जाम, देन आई गॉट इनटू सेंट्रल सर्विस एंड पुलिस सर्विस एंड नॉट इनटू आईएएस प्रॉपर। तो उसमें भी मेरे को बड़ा दुख लगा। तो मैं और मेरी बहन और एक हमारे साथ जो गुरु भाई था वो हम ऋषिकेश पहुंच के जब स्वामी जी के कमरे में गए तो कुछ महात्मा बैठे थे, वो उनको पढ़ा रहे थे, और हम एक साइड में जाके बैठ गए, जैसे वो नियम होता था गृहस्थ एक तरफ बैठते थे।
तो जैसे वो महात्मा चले गए तो स्वामी जी एकदम सीधा टर्न करके मेरे को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, अरे महादेव इतना बुरा मान गए, इतना बुरा मान गए। तो मैंने बोला स्वामी जी को तो मैंने अभी कुछ बताया भी नहीं, कुछ नहीं कहा। तो कहते, फिर थोड़ी देर चुप होके कहते, ये देखो उनकी करुणा। तो कहते, चाहते हैं हम अभी बदल दें, अभी बदल दें? तो मैंने कहा स्वामी जी आप लिस्ट में जो कुछ नाम है वगैरह सब कुछ आप बदल देंगे? तो कहते हाँ क्यों नहीं, तत्काल। फिर वो थोड़ी देर ऐसे दूर करके देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे 5 मिनट। फिर वो कहते नहीं महादेव इसी में रहो, इसी में आपका जाके आगे कल्याण होगा। और फिर उसके बाद मैंने देखा मेरे जो IAS के कुलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, किसी को मायावती से डील करना पड़ा, किसी को लालू प्रसाद से डील करना पड़ा, किसी को मतलब बहुत उनके लाइफ में ऊट पटांग आया। जो IAS ऑफिसर्स मेरे बैचमेट्स हैं उनके साथ हुआ, जो हम उस सब से सुरक्षित रहे। तो ऐसे बार बार उन्होंने रक्षा करी। ऐसे मैं एक आधे जैसे प्राइवेट इंसिडेंट्स बताती हूँ। हर चीज में, हर नियम में उन्होंने धर्म का पालन किया और उसका तरीका बताया कैसे उसको फॉलो करना है। और कहते थे कोई भंगे कपड़े पहन के आपके घर में आ जाए तो उसको महात्मा मत समझना, उसको परख के जान के ही किसी को अपने घर के अंदर आने देना, किसी को वैसे मत आने देना। तो उसमें एक दिन वो आके मेरे पिताजी आए तो वो हाथ जोड़ के कहते, ओम प्रकाश जी हम आपसे एक कुछ मांगना चाहते हैं, मांग लें? तो मेरे फादर ने कहा हाँ जी। तो उस समय में ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी वहां। तो एक महात्मा छत से गिर गए थे। वो थोड़े आंखों से उनको बहुत कम दिखाई देता था और वो बहुत बहुत ही पवित्र महात्मा थे। वो कहते इनका इलाज करवा दीजिए। तो वो महात्मा जब हमारे घर में आए तो हम सोचते थे कि ये बहुत ही चाइल्ड लाइक और फुलिश हैं, और ऐसे ही हम थोड़ा आपस में हंसी मजाक उड़ाते थे उनके बारे में। तो वो जो महात्मा घर में आए, मतलब मैं महात्मा का अंतर और दुनिया वालों के अंतर बताती हूँ। तो वो आके कहते मैं आपके घर में बिना कुछ दिए रह नहीं सकूंगा। तो वो कहते मैं मेरे को खाली पढ़ाना आता है। तो वो कहते मैं गीता पढ़ाऊंगा। तो हम सब भाग गए, मेरी मम्मी को उन्होंने गीता पढ़ानी शुरू कर दी और इतनी सुंदर गीता पढ़ाई, इतनी सुंदर गीता पढ़ाई। तो मम्मी कहते हैं आप लोग बहुत बेवकूफ हैं, ये तो ऐसे महात्मा है कि इनको इतने गूढ़ रहस्य से अंदर से ज्ञान है और आप लोग इनका जो बाहर का एक्सटीरियर देखे समझ ही नहीं पा रहे। ये ऐसे महात्मा की अपना ये प्रत्यक्ष बताते नहीं कि है क्या। फिर वो स्वामी सत्यानंदपुर जी वो चले गए। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये गुरु किस वक्त काम आते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। तो 1977 दिसंबर में तो सुबह सुबह स्वामी सत्यानंदपुर जी घर आ गए। तो बोलते हैं कि अच्छा बाबूजी अस्पताल में है? मैंने बोला हाँ। कहते अच्छा मेरे को ले चलो वहां। तो स्नान किया, नाश्ता। कहते नहीं 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 आप नाश्ते के बारे में फिक्र नहीं करूं। मैंने सोचा चलो हॉस्पिटल में खा लेंगे। सो ही केम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मैंने कहा स्वामी जी खाना खाओ, खाना खाओ। नहीं नहीं यहाँ का खाना दूषित है, हम नहीं खाएंगे। तो बैठ के मेरे ग्रैंडफादर के साथ उनका हाथ पकड़ा जिसमें वो ब्लड की ड्रिप जा रही थी, और बैठ के शुरू से लेके अंत तक उनको सारी गीता पढ़ा दी। गीता एक दिन में पूरी कर दी। और फिर जैसे गीता पूरी हो गई तो फिर उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर उनको थोड़ी सी वो चले गए। माय ग्रैंडफादर वेंट अवे उसी दिन गीता सुन के। तो फिर हम जब घर आए तो मैंने कहा स्वामी जी आप सुबह से भूखे हैं, आप खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। वो कहते हैं जिस घर में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हम उसका खाना नहीं स्पर्श करते, वहां वो पातक लग जाता है। वो चले गए वहां से। तो मैंने सोचा ये देखो महात्मा कैसे हैं कि जैसे किसी की डेथ या कुछ होती है, क्या करके चले गए। सुबह आए, भूखे रहे, गीता सुनाई, उनका कल्याण किया, उनको उनकी रक्षा करी और चले गए। तो ये मेरे को स्वामी जी के बारे में नजर आया। अब स्वामी जी विदेह कैवल्य को प्राप्त किया उन्होंने 14 जुलाई 1991 में। अब उस समय के बाद हमारा थोड़ा सा कैलाश आश्रम जाना आना थोड़ा कम हो गया।
तो अब मेरे मदर थोड़े बीमार रहने लगे और शी वॉज ऑल्सो ऑन हर डेथ बेड। तो उसमें हम बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो मैंने कहा कि परेशान तो हो जाता है कि आप जैसे कि देह जाती है ना, आपको अच्छा नहीं लगता किसी को अपने डियर मदर फादर को ना तड़पते या दुखी देखते। तो मैंने फोन उठाया और स्वामी जी के भक्तों में से एक महात्मा है, मैंने फोन उठाया, बोला आप सब महात्मा ना हमको सारी उम्र ना झूठ बोलते रहे कि आप पूजा करो, पाठ करो, भगवान का नाम लो, ये करो वो करो और ये सब बड़ा काम आएगा। अब देखो मेरी मम्मी ने शुरू से लेके, बचपन से लेके अब तक कोई भी बुरा काम नहीं किया सिवाय पूजा के। इतनी पूजा पाठ हमारे घर में होता है उनकी वजह से, और ये हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उनको ऐसे तकलीफ है। तो ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा, फिर अगले दिन मैं गई मम्मी के पास और शिव महिमन स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम सब कुछ उनको सुना दिया। फिर एक वीरा वाली माता जी थी जो वो जाते जाते ना उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, पर उन्हें पेंसिल से लिखा साक्षात शिव आवे। तो उसके बाद वो चले गई। तो मैंने कहा वीरा वाली माता जी तो वैसे भी बहुत ज्ञानी थी, बहुत स्वामी जी के साथ उनका साथ रहा। फिर अब मैंने थोड़ा लालच से मम्मी से पूछा, मम्मी आपको शिव जी नजर आए? कहते नहीं। मैंने बोला मम्मी आपको विष्णु भगवान नजर आए? क्योंकि मैंने उनकी स्तुति करी थी विष्णु सहस्रनाम। कहते नहीं। फिर मैंने कहा मम्मी आपको स्वामी जी नजर आए? जिसे ले वो 24 घंटे मेरे सामने है, 24 घंटे मेरे सामने खड़े हैं। तो मैंने कहा वाह रे गुरु, स्वामी जी साथ में खड़े हैं। तो वो उसी वक्त फोन बजा और स्वामी ज्योतिर्मय जी करके रात को कहा था आप सब महात्मा हमको गलत सिखाते हैं, उनका फोन आया। कहते मैं रात को ध्यान में चले गया, फिर मैंने स्वामी जी आए और उन्होंने कहा कि आप उनको कहो कि उनका एक ही काम है, माता की पूरे दिल से सेवा करें। उनको कब लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना, वो हमारा उत्तरदायित्व है और वो हम संभालेंगे। उनको रोक टोक का कोई अधिकार नहीं। तो उस वक्त मैंने सोचा देखो ये गुरु ऐसी चीज है, हम सब उनको मम्मी को प्रेम करते सब वहां खड़े हैं और स्वामी जी आ गए हैं और वो इस लोक से परलोक में वही जा रहे हैं। तो ये गुरु बड़ी अद्भुत चीज है, जो गुरु इहलोक से परलोक तक गुरु आपको लेके जाता है, वो तो ब्रिज है। तो उस वक्त मेरे को गुरु की महिमा बहुत जैसे दिल में लगी। और उस वक्त फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप मैंने विष्णु सहस्रनाम किया और एक शंकराचार्य की स्तुति है जो उन्होंने अपनी माता के लिए करी थी जब उनकी माता जी जा रहे थे, जब उनका कल्याण हो रहा था। तो शंकराचार्य ने माँ के लिए स्तुति करी थी जहाँ स्वयं विष्णु आके उनकी माता को वैकुंठ लेके गए थे। तो वो स्तुति मैंने मम्मी के लिए करी और साथ में मैंने जल पियोगे, और गंगा जल में मैंने तुलसी डाली थी, उनमें गंगा जल मुंह में डाला और फिर मैंने विष्णु सहस्रनाम शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने विष्णु सहस्रनाम किया वो सुनते गए, और मैं उनको एक किताब में ना एक विष्णु की मूर्ति थी वगैरह जहाँ शेषनाग पर है, लक्ष्मी सब के साथ है। मैं मम्मी आप यहाँ जा रहे हो, ये वैकुंठ है, अब ये आपका घर है, आप यहाँ जा रहे हो। तो मैंने सोचा उनकी आंखों से, कान से, मुंह से सब कुछ विष्णु को ही भगवान का नाम लूं। तो उनके मुंह में गंगा जल डाल दिया, तुलसी डाल दी और बोला मम्मी देखो देखो देखो। जैसे ही मैंने विष्णु सहस्रनाम पूरा किया उनकी आंखें बंद हो गई सुनते सुनते सुनते। तो मेरे दिल में बड़ी जैसे शांति के चलो मम्मी का कल्याण हुआ। तो उसके बाद मेरे को मेरी मासी का फोन आया कि मैं अभी ना पूजा में बैठी थी और मैंने देखा स्वामी जी मम्मी मेरी माता को, अब मेरी उनकी बहन को वो साथ लेके जा रहे हैं। तो मेरे को 3 जगह प्रमाण मिला कि अरे ये गुरु इतना अद्भुत है कि मरते समय ना शिव आए ना विष्णु आए, गुरु आए। तो ये गुरु का कितना धन्यवाद करूं। तो अब स्वामी जी चले गए हैं, अब स्वामी जी चले गए, अब मेरे को प्रमाण चाहिए कि स्वामी जी हैं हमारे साथ नहीं।
उसका भी मेरे को संदेह था। फिर क्या हुआ, जैसे कि एक मैं ऋषिकेश गई तो स्वामी प्रेमानंद जी ने स्वामी जी की बहुत सेवा करी थी। तो स्वामी वो कहते कि आपको महाराज जी से मिलना है? तो मैंने बोला हाँ। कहते खाली मिलना है या मिलना है और बात भी करनी है? तो मैंने कहा दोनों ही करने हैं। तो कहते अच्छा चलो हमारे साथ। तो मैं उनके साथ चले गई। और ऋषिकेश में ना जैसे कि एक तरफ पहाड़ है और वहां खाली घने जंगल है, एक तरफ गंगा जी बहती हैं और रोड्स टाइट है और बहुत ट्रैफिक है। तो एक साइड में जाके आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा, ऐसे घने जंगल में एक वो कहते ये जगह वो लकड़ी से मारा, कहता यहाँ उतर जाओ। हम उतर गए। वहां से वो जैसे कि पेड़ों के बीच में से एक रास्ता निकला और वहां एक पूरी भारी क्लियरिंग थी। उस क्लियरिंग में स्ट्रीम बह रही थी। तो वो स्वामी प्रेमानंद जी कहते यही आते थे महाराज जी, यहाँ बहुत घंटे जाके मेडिटेट करते थे। वो क्लियरिंग हमको मिल गई, हम वहां चले गए। तो वहां हम बैठ गए। फिर स्वामी प्रेमानंद जी मेरे को कहते आप आंखें बंद करो और महाराज जी को बुलाओ। तो उस दिन मेरे सिर में बड़ी दर्द हो रही थी और मेरे को किसी वजह से गुस्सा आया हुआ था। तो मैं बैठ के आंखें बंद करी और स्वामी जी को ध्यान करना शुरू किया। तो मेरे आंखों के सामने से जो काले काले क्लाउड्स हैं वो हट गए। फिर उसके बाद पिंक क्लाउड्स आए, वो हट गए। फिर उसके बाद व्हाइट क्लाउड, सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड्स आने लगे। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारे साथ एक और भक्त गए थे। वो कहते महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। तो वो सभी, फिर वो जो भक्त था वो मेरे साथ ही बैठे थे, तो सभी फिर महाराज जी से बात करने लगे। तो स्वामी प्रेमानंद जी ने बताया हमको ये दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए वो उनका हल बता रहे थे। फिर वो कहते स्वामी जी शशि यहाँ आई है, शशि आपसे बात करेगी। तो मैंने बोला स्वामी जी, अब स्वामी जी को गए 1991 में चले गए और ये बात होगी अराउंड मेरा ख्याल है 2003 या 4 की। तो मैंने बोला स्वामी जी आप हमारे से खुश हैं? तो वो कहते आपके घर का खान पान ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मीट वगैरह बनता है, मेरे हस्बैंड वगैरह खाते हैं, मैं नहीं खाती। पर वो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने उनसे काफी सारे प्रश्न करे मेरी प्रमोशन के बारे में और इंक्रीमेंट ये सब के बारे में और बच्चों के बारे में। फिर मैंने कहा स्वामी जी बच्चे ठीक रहेंगे? वो कहते अगर सच्ची माँ का व्यवहार करोगे तो बच्चे ठीक रहेंगे। तो मैंने बोला सच्ची माँ कौन है? कहते सच्ची माँ वो है जिसके हृदय में केवल अपने बच्चों का हित है। उस हित के लिए उसको डांट भी सकती है, फटकार भी सकती है, ललकार भी सकती है, लाड भी कर सकती है। वो है सच्ची माँ। पर उनका हित, दूर अंदेशी से हित चाहे कि वो बड़े होके अपने बल पर खड़े। तो फिर मैंने अपने जॉब के बारे में पूछा कि मैंने बोला स्वामी जी मैं नौकरी करूं या प्रोफेशन में आ जाऊं? तो कहते हैं आपके लिए कोई भी चीज संभव है और फिर संघर्ष में सदा अपनी रक्षा स्वयं करनी है। फिर मैंने अपनी इंक्रीमेंट के बारे में आ गई दोबारा। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछते हैं आप किस उलझन में फंसे हुए हो, आपको धन चाहिए या शांति? तो स्वामी प्रेमानंद जी मेरे को झट से इधर उधर से बोलने लगे, बोलो शांति, बोलो शांति। मैंने बोला जब धन आएगा तो शांति अपने आप ही तो आएगी। तो कहते बोलो शांति, बोलो शांति। उन्होंने देखा कि मेरा फेस अभी कन्विंस नहीं, तो ने कहा ये कहीं गलती ना कर बैठे। तो जल्दी वो उन्होंने बोला स्वामी जी शशि को शांति चाहिए, शशि को शांति चाहिए, शशि को शांति चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा तथास्तु। फिर उसके बाद स्वामी जी कहते आप इस जगह में जो आए हो, धरती माँ की आज्ञा ली? तो वो चुप हो गए। कहते आपने अपराध किया है, इस कार्य के लिए बेवजह से महात्माओं को नहीं बुलाते और धरती माँ की आज्ञा के बिना उस भूमि पर अब तपस्या नहीं कर सकते। आप जब भी तप करते हो तो धरती माँ की आज्ञा लो, क्योंकि वो आपको धारण करने वाली है।
अब आप जाके वो जो स्ट्रीम थी उसमें हाथ धो के माँ को नमस्कार करके उसका अपराध क्षमा मांग के फिर आप चले जाओ। तो ये फिर उसमें बीच में मैंने स्वामी जी को कुछ और भी कहा, तो कहते आपको क्यों संदेह हो रहा है, हम सदा आपके साथ हैं, सदा आपके साथ हैं। तो मैंने सोचा वाह रे गुरु, हर तरफ से मेरे को बचाते हैं। तो फिर वो हमने वो सब किया। फिर मैं गाड़ी में आई तो स्वामी प्रेमानंद जी मेरे को कहते हैं, बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं और वो बड़े ही दुखी हैं। आप जो हो, एक आदमी के मन में अगर शांति है तो वो एक पेड़ के नीचे भी शांत और मस्त रहता है। कभी ऐसी गलती मत करना। तो उसके बाद मैंने अपने हृदय से और मन से दोनों से स्वामी जी को बार बार प्रणाम किया कि वाह रे गुरु, तो सचमुच में गुरु है। जो गु है डार्कनेस, अंधकार से रू लाइट की तरफ लेके जाता है। वो प्रत्यक्ष बार बार आप मेरे को ऐसे प्रमाण देते हैं, जब जरूरत है आप आ जाते हैं। तो गुरु की महिमा हम कितनी करें, जितनी करें उतनी थोड़ी है। तो ये जो गुरु गीता गौर साहब पढ़ा रहे हैं, ब्रह्म प्रकाश गौर साहब पढ़ा रहे हैं, उसको सुनते सुनते मेरे को अपने गुरु इतने याद आए कि मैंने बोला वाह रे गुरु, इहलोक परलोक सुधारने का आप ही एक साधन है, आप ही एक माध्यम है, और आपकी हम जितनी महिमा करें वो थोड़ी ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये गुरु गीता जैसे चल रही है, मैं एक जो साक्षात विभूति से मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आप सबको बारे में सचमुच में मैंने डायरेक्टली जो एक्सपीरियंस करा ये बता रही हूँ कि इहलोक परलोक का, डेथ के टाइम में बाबूजी का, और जाने के बाद प्रमाण देते हैं कि गुरु सदा तुम्हारे साथ हैं। तो ये है सच्चा गुरु। ये गुरु जो मैंने देखा था, ये साक्षात मैंने जो देखा है उसके बारे में मैंने व्याख्या की है। तो इसके बारे में मतलब कि अगर मैं किसी भी तरह से त्रुटि से झूठ भी बोल गई या एग्जैजरेट कर गई, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रमाण देना चाहती हूँ कि एक महात्मा थे निश्रेषानंद, जो मेरे साथ स्वामी जी के हमारे ही टाइम में 69 में स्वामी जी के पास आए थे। तो उसमें उन्होंने जो स्वामी जी का वर्णन किया है वो मेरे से भी अधिक है। जो वो बताते हैं कि ये है स्वामी जी का वर्णन, इंग्लिश में लिखा है कि हियर seated right in front of him was Mahadeva himself, who was the embodiment of his long cherished pure supreme bliss and eternal peace. As soon as this bhikshu prostrated with sincere, tears started rolling down his cheeks, and the great soul with his quiet gracious face brightened up with a sweet smile and looked at him and with his hand showered hundreds of blessings. तो इसमें मैंने बताना था कि जैसे मेरे पिताजी गए थे अप्रैल मई में गए होंगे ऋषिकेश 69 में। तो वो स्वामी प्रणवानंद जी के पास गए क्योंकि मेरी मदर लाहौर से हैं और वो वहाँ अक्सर ऋषिकेश आया करती थी और उनको ऋषि कन्याएं बुलाते थे, क्योंकि हमेशा वो ऋषिकेश में ही रहती थी। तो स्वामी प्रणवानंद जी को जानते थे क्योंकि लाहौर से थे और उस समय में भगत सिंह उनके घर में आके छिपा करते थे। और मेरे फादर भी ऋषिकेश के लिए मतलब इंक्लाइन थे। तो वो जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमको ऋषिकेश ले गए। वी गॉट बोर्ड एंड वी केम ऑफ। तो सेकेंड टाइम माई मदर फादर वेंट अलोन एंड दैट टाइम दे आस्क्ड स्वामी प्रणवानंद जी के हमको गुरु चाहिए, सच्चा गुरु। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे उत्तराखंड में एक ही विभूति का नाम जो सबके मुंह पर है वो है स्वामी हरिहर तीरथ जी। वो त्याग मूर्ति हैं। वो उनको ना किसी पद से, ना पैसे से, ना किसी चीज से लगाव है, सिवाय अपने भक्तों का हित चाहते हैं, इस सृष्टि का हित चाहते हैं और वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो मेरे पिताजी जब उनके पास गए तो देखते ही पता लग गया कि तो ये तो चीज ही अलग है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमें अपना शिष्य धारण करो। तो स्वामी जी ने कहा आप क्या कर? तो उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ।
तो कहते नहीं, हम वकीलों को शिष्य नहीं धारण करते, असूल है। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते कि जो वकील है वो झूठ का सच, सच का झूठ, और इधर का उधर, उधर का इधर करता है। ऐसे लोग इस मार्ग के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते क्यों? कहते ये मार्ग सरलता और सच्चाई का है, तो हमको ऐसे ही भक्त चाहिए। तो फिर मेरे फादर ने कहा, स्वामी जी हम उस किस्म के भक्त नहीं, हम क्रिमिनल लॉ नहीं प्रैक्टिस करते, हम लेबर लॉ प्रैक्टिस करते हैं। उसमें जो स्टैट्यूट है उसको एनालिसिस करके हम कोर्ट को बताते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन पर जाते हैं। हम क्रिमिनल लॉ में झूठ सच ये सब चीजों में नहीं पढ़ते। तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा आप अभी जाइए, हम देखते हैं। So my father and mother were staying at IDPL. They went back, and next morning he said, "Come at 9 o'clock." So next morning they were coming in the car to the ashram, and suddenly my father felt great white light coming and into his whole body, and he felt eternal peace and bliss. And this went on for about 15-20 minutes. Then when he came to the ashram, he told Swamiji this. तो स्वामी जी सेड, हाँ हम भी परख के देखना चाहते थे कि हमारा आपके साथ कोई संबंध है कि नहीं, कि हम आपके गुरु हैं कि नहीं। इससे प्रमाण हो गया कि हाँ हमारा कुछ कनेक्शन है। उसके बाद उनको गुरु धारण किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा स्वामी जी आप हमारे घर आइए दिल्ली में। तो स्वामी जी ने कहा हाँ जरूर आएंगे। तो उस वक्त सारे वहां खड़े होके कहते ये क्या कह रहे, स्वामी जी तो किसी आश्रम से बाहर ही नहीं निकले, बाहर नहीं निकलते, किसी दुनिया वालों को अपना दर्शन नहीं देते, बहुत ही संयम से रहते हैं। तो उसके बाद स्वामी जी हमारे घर आए 1969 में, और उसमें हम सब बच्चों को इतना फायदा हुआ। और थोड़ा सा मेरी मदर और फादर दोनों की तरफ से काफी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, और थोड़े थे शुरू से ही, परंपरा से हैं, दो तीन जनरेशन से स्पिरिचुअल थे। तो शायद इसीलिए महाराज जी मिले, पता नहीं। पर स्वामी जी ने ये एक जब वो दीक्षा देते हैं तो उसमें वो ये कहा कि वो सभी भिक्षुओं को साथ बुला के वो कहते हैं कि मेरे जन्म जन्म के तप की जो कुछ भी विद्या प्राप्त की है, मैं आपको अपने साथ लेके उसका पूरा बल देता हूं। तो उसके बारे में एक बारी वो कहते थे, जो कहा है ये मैं भी देखा, मैंने भी सुना था, पर इसके लिए मेरे को कोई प्रमाण नहीं। वो कहते हम श्री रामचंद्र जी के दरबार में ऋषि मुनि थे। तो हमने पूछा स्वामी जी हम कहाँ थे? कहते आप भी वहीं थे। तो मैंने बोला इतने जन्म बीत के हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ, अभी भी दुनिया में के उसमें ही फंसे हुए हैं। तो वो कहते हम तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। तो ऐसे वो देखते ही आपको बता सकते थे कि उन्होंने तुम्हारा बैकग्राउंड और ये सब क्या है। तो ये मैंने गुरु को जो साक्षात प्रमाणित देखा है, हालांकि वो संन्यास में ही थे, दुनिया में नहीं थे। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा जो सन्यासी लोग हैं सब कुछ उनके बारे में भी बताऊं, क्योंकि वो बहुत सिखा गए, जैसे कि साधारण लाइफ में सिखा गए। और उनके जो डिवोटीज थे उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि जो डिवोटीज हमारे घर में आए थे 1969 में, वो ज्यादातर पहाड़गंज वाले थे, और कई इतने गरीब थे, कोई टांगे वाला था, कोई किताबों वाला था, कोई कुछ वो कचौरी बनाता था, ये सब था ऋषिकेश में। तो फिर मम्मी ने उनको पूछा स्वामी जी आपका कोई ढंग का भक्त नहीं, सभी ये गरीब लोग आ गए हैं। तो स्वामी जी कहते नारायण जो शिव जी के भक्त थे वो लंगड़े लूले कोड़ी वही तो थे। तो उनको कोई दुनिया दुत्कार के उनको समाज से परे कर देती है, और जो चीज समाज का दुत्कारा हुआ है उसको महादेव स्वीकार करके उनकी रक्षा करते हैं। तो मैंने सोचा अरे वाह गुरु, सोसाइटी में कोई भी जो धिक्कारा हुआ है, जिसका मतलब कोई भी कुछ नहीं है,
उसको महाराज जी ने स्वीकार किया। और इसके बारे में बताती हूँ कि ये जो वीरावाली माता जी थे, इनका जो पुत्र था, जब पार्टीशन हुई तो वो उसको टाइफॉइड हो गया, और उसके जो पुत्र सबसे बड़ा बेटा था, उसके बैक में हंचबैक हो गया, और वो कभी सीधा ही नहीं हुआ, ही वाज हंचबैक वेरी बैडली। तो जब महाराज जी के पास आई तो स्वामी जी ने उसको देखते ही कहा, अरे नारायण, इसको ठीक करना है। तो उसको नेचुरोपैथी कई चीजों से उसको ऐसे मजबूत बना दिया, बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ऑल्दो लिटिल हम्प रिमेन्ड। और उसके लिए मैं, जैसे हम जंगल में जा रहे हैं स्वामी जी के पास घूमते, वो पेड़ों के नीचे सब जगह ढूंढेंगे। उन्होंने वो बोरियां इकट्ठी कर रखी थी बेल की, कि ये बलदेव, ये बेल ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। किसी के लिए कुछ और इकट्ठा कर रखा था, ऐसे सबके लिए जाके ना बोरी में किसी चीज में इकट्ठा कर करके ना वो अपने भक्तों को देते थे। और ये भक्त गरीब से गरीब थे, इतने गरीब थे कि मतलब कि और वो सब आज सब अपनी अपनी जगह में ठीक हैं, और वो सब कहते हैं हमको ईश्वर नहीं चाहिए, हमको स्वामी जी चाहिए। तो ये मैंने स्वयं साक्षात देखा है, इसके बारे में बस इतना ही वर्णन करना है। सो मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, विशेषतर इस रूप से कि गौर साहब गीता उसका गीता का वो प्रकाश कर रहे हैं, गुरु गीता का प्रकाश कर रहे हैं, और जो जो उसमें वर्णन किया है वो साक्षात मैंने देखा है। और इसीलिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार ग्रुप पर पूछते हैं, तो मैंने कहा इसका जवाब तो मेरे को स्वामी जी से मिला ही हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं। इतना ही था मेरा अभिप्राय कि मैं आपसे शेयर करूं। दैट्स ऑल, थैंक यू। Yes. Yes, some questions from anybody? Yes, madam. Can I speak? Yeah. Vatsala madam, no? Yes. Ma'am, it was a very, very moving exposition. Tears were flowing down my eyes. What you said is modern day manifestation of all that we are learning in the Guru Gita session. I mean, this is how a guru is. You have given the living proof of how the guru functions. And it was a very moving testament to the truth in the Guru Gita, which we are learning. It has come at such an appropriate time. And secondly, I understood your Hindi very well. The early part, very first, where you said the ladies from Uttarakhand took over your kitchen and the house. And Yes. then they told you something about the Guru. That alone, Hindi was tough for me. Rest of it, I followed everything. I'll explain to you. The ladies from Paharganj, they took over the kitchen. After that, I could never feed Swamiji again. She told me, when there's that mud cup in which you drink tea. Cooler. Okay. So she said, when you buy that cooler for 4 annas, I'm talking of 69, okay? Yes. So Yes. we used to talk in annas terms. So she said, when you take a cooler for 4 annas, you will examine it when you buy it from the potter that it's leaking. You will talk to him. It's a 4 anna cooler, and you will knock it and see, is it leaking? Is it all right? If it is cracked, throw it away, right? So she says, so if a 4 anna cooler is so valuable that for your 4 annas you're knocking it and testing it, then you must also knock and test your guru. You must not accept a person just like that. And for that, the most important thing is vivek, discrimination. So you must have, that's why I gave you the 4 standards of Satyog, which I saw in my Swamiji, that truth, tapasya, shauch, and compassion. And true, I mean, the only thing you have in your heart is hit chintak. So if these 4 standards are met, then you will know that he is a true guru. So you must not get caught in wrong gurus, because that is a precaution he also warned us about in 1969. So you have to be very, very cautious when you accept a guru, and his actions will speak louder than words. Wonderful. And this was told to you by the the women from Paharganj. Paharganj, who came to house the second day my Swamiji came into the house. So she says, don't accept him. You must test him. And
what tests in front of us, things were happening. My father's migraine disappeared. In the hospital, one man who could not walk for 9 months came and met him. I saw him, and he came and he started crying that his money is over. And then he became all right, came to Swamiji. And this S.K. Kakkar, you would have read if you are in Delhi, that he became the director of All India Institute of Medical Sciences. So all this happened in front of me. How can I say no? It was there in front of me. You are so blessed, and we are blessed to have you in our midst. It's a great honor, and it's a great feeling. It's a great honor to be with all of you. So grateful. They say in olden times, we honor and worship those who have returned from pilgrimage. So we honor and respect someone who has been a disciple of such a great guru. My pranams to you, ma'am. Yes, yes. And we always used to say, seeing Swamiji is a pilgrimage. Yes. Seeing him. In fact, I wanted Padma to put forth the pictures. I don't know if she is there, Padma. Yes, I'm very much there. I will share the screen. Share the screen, please. I'll just show you his pictures. Can you see the screen? Yeah, I can. Can the others see it? Yes, we can. We can, ma'am. Yes, we can too. 1 minute. Just give me a moment. I think this is not the first picture. It doesn't matter. It Give is. it a minute. Yeah, can you see this? Yes. I'll go here. Stop sharing. This slideshow share one more. No, it's a PowerPoint. This is not a PowerPoint. Oh, just 1 minute. I think I. No, this one. Yeah. Yes. This is what I saw. See his face, that shining face. This is what I used to always see him. And we used to do most of Anantai Sarasmute to him. Yeah, I'll share the other pictures also. Yes, yes. Yeah. Okay, so this is the picture of the first one. This is the second one. Shall I go to the next? Yes. This Swami Premanandji, who's standing in him, he is the one who said, Shashi Ko. He was very young then. This is when they came to my house. Young he was, but then afterwards in 2005, when I saw that when we went to the clearing in the Himalayas, Dr. This was, and here he is doing Patan of the. This is Kailash Ashram, where from 250 years regular Brahm Vidya is taught. So that's all. Shall I stop sharing? Yes, that's the only picture. I just wanted to show them what I saw. Right, madam? Yes, thank you. Yeah, I think I'll just take a moment, ma'am. Very thank you, Shashi, madam. Okay, thank you. You spoke from heart. It reached our heart. And Thank you. what you've narrated down, I could correlate with my guru, how Yes. I've gone across with him. And it was so true. I actually went with goosebumps, and I was, correlating with every instant what you mentioned. Yes. And we are really blessed because, like what you said, you are a blessed soul. And to be here, to get your word to reach to our heart,
I think that's the connect of the Guru, what he has got us through. And we're all blessed to listen to you today, because I think we have been blessed by your Guru in some form. It has reached us. We are so delighted and thankful to you. And I thank you with folded hands. Thank you. Guru is always with you and sharing those thoughts with us. I think you have enlightened us. And Thank you. every word you have spoken, I could correlate with my experiences every moment. And I know what really happens at that particular moment when things happen to you. And it's very difficult to describe to anyone, to bring it to someone's notice. But I think this was your Guru's diktat, which came through you to reach us, because these things don't happen on their own. They don't happen on their own. There have been so many things. And let me tell you, no matter how much scriptures one reads, how much people come and tell you about Vedanta and other things, the learning what happens through experiences like you, I think we are all enriched today. Probably we wouldn't have understood this had it been some very great, illumined guy coming and teaching us Gita or something. Probably wouldn't have understood it in the manner. But what you have said is that it reached us right within. And I can show you, all of us, in some form or the other, will have this little knowledge within us, and we will find a change from today on. I can assure this does happen. It happens because it is coming right from the Guru. And this is not a coincidence. This is a planned way to reach to us. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. Anybody else would like to share something? Yes, Hello. anybody? Hello. Oh, yes. Who's that? This is Asha Mehra. Okay. Asha, Yes, ma'am. Padma, please bring her if you can. Lovely Yeah, to yeah, hear I'll you. do that. Yeah. Lovely to hear you. And your talk is was very necessary. I thought it was really a very, very important stage of our learning of Guru Gita, because learning it with a belief, automatically what we read, we will believe it. Otherwise, when we read something, we tend to listen to it, but it doesn't really go down our system, because we are not sure how far it is true. Yes, But ma'am. your own experiences will show that what we read in Guru Gita is 100%, 200% true. Yes. Because you have actually gone through these things. Yes. So it will make our Guru Gita a better understanding. Not a better understanding, but the most perfect understanding. Yes. Yes. It'll directly hit you. Yes. Yes, they will directly. At the moment you we will read a shlok, your experience will come forward and will tell that this is the truth. This is really so. The Yes, doubts ma'am. that may arise in our minds of so many things will not occur. Yes. And this will further confirm what Mr. Raj Kundra has said. Thank you. The experiences that we have when there's a live Guru. Because when you have doubts, your doubts can be clarified when he is there. Otherwise, the Guru who has taken Samadhi, unless he is able to satisfy you about the doubts that come, Yes. you keep guessing. Yes. You're speculating. You're wondering what is happening. You're not able to interpret what exactly we are seeing. Yes. But having a live Guru, you can be taught all those things which don't come in textbooks. Absolutely. Whatever scriptures, Absolutely. whatever they don't come. Yes. And I also could relate to a lot of what you have gone through, your experiences. And it's been a very, 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 very pleasing, a very beautiful journey that you have had. Although I knew you so long, I never knew this aspect of your life. You have such a blessed parents and such blessed family. And all of you have been so pure. So such souls come together, not without a reason. Thank you, ma'am. Such souls come together because they have a common journey to go through. Thank you, So ma'am. thank you very much. I think something will rub on us also of your experiences, your compassion, your truth. Something will rub on us also. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you. Bye. Wonderful. Yeah. I would also like to say something.
I have come back just now. Good evening, everyone. So I am supposed to be the host of this meeting today, but most of the time I have been away after starting the meeting because of some work in Chennai. But I have known Shashi for the last about 30 years now. Yes, yes. And it has been such a pleasure and a privilege both. And she comes from a lineage that is truly remarkable. And this idea of having Shashi share her experiences, and I have, heard many of these stories she may have shared today. I did not hear her. I did not get the chance to hear. But she has had the benefit of being with a great master since early childhood. And that is the time when the receptivity is at its best. Because as we grow up, the intellect becomes very powerful, and a lot of questions or a lot of doubts even come to arise. But a child learns in very simple ways, and more than learning, a child absorbs things very easily. And that is what Shashi has done. And she is a living example of all that she has learned through the childhood. And I must say that I feel myself very privileged to have known her and to have really been known to all the family members. Yes. So, because I have been to her place so many times. And the idea of having her share her experiences just came to me because we were looking for somebody to do the programs. And I knew from the very beginning that people will have astounding experiences listening to her. And to be able to really transmit the experience of the Guru or understanding of the principle of the Guru is to have a disciple share his or her own experience. Because that puts the person straight into the heart. And when the heart is speaking, then every other heart listens. And this is evident from the reactions that we have seen here. So I'm so happy that it happened, Shashi. And it is not the only time. We would love to have you again. Thank you so much. And maybe some more family members you can bring who can share their experience. Thank you. Thank you. So we have recorded it, so I will listen to your talk later. Thank you. I was so happy listening to everybody's experience that I could not stop myself from butting in and saying what I have to say. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. So we're coming to the end of the program. Hello? Am I audible? Yes. Yes. Yes, Lakshmi, you are audible. Yeah, just pin me. We're waiting to hear your Abang. Oh, is there time? Actually, I'll just tell you what we had planned. No, you please sing the Abang. We cannot be Okay, part few of one lines. call. Right. But before that, I wanted to firstly endorse all the feelings that all of our listeners have shared. Some of them have been shared. Some have been felt. Yes. सुनने में आ रहा है? Yes, yes. Okay. Somebody's talking between. Somebody's talking a lot. Yeah, you'll have to mute others. It's Vijay Sharma. If you can mute. Yeah. Done. Thank you. So I wanted to say this. In fact, the first time I remember meeting Shashi Kapila Madam in the Mahalakshmi office, there was a certain aura which I did not understand about her. I only felt she is such a gentle woman and such a sweet person. And today I realized the secret behind that aura, the sweetness and the gentleness with which she has been around in the office.
that today the secret has been revealed, and to me and all of us have enjoyed the entire experience that she has had. It has almost been a vicarious pleasure hearing her, right? Now, another thing is we had planned, Madam has also learned pranic healing from, yes, and she wanted to share a certain meditation which we do in pranic healing, which is guided by the Master Chua Kok Sui, who is the founder of modern pranic healing. But it would be a session of nearly 20 to 25 minutes. So let's take a call as to whether we are doing it now or shall we keep it for another occasion. How do we decide that? It's minimum 20, it would take almost 25 minutes to come out of. Yes. It'll take some time, and it's complete in itself. So yes, juxtaposing would be two powerful events. Perhaps. Okay. So shall we keep it for another time, Madam? I leave it to others. Yes. I think that'll be fair, ma'am. Yes. Yeah. Yes. Right. Where we could even have a little introduction to the particular meditation, which is a very powerful one. And then after the discussion, we can experience the meditation next time sometime. We'll arrange that. Today's session is high intensity, high energy experience. Yes, yes, yes. So shall we wind up? Like Vatsala Madam has been waiting. I thought I would start with an Abhang, but I will end with it. Just 3 to 4 lines of the Abhang, which fits so appropriately with the feelings that Kapila Madam has expressed. I'll just sing 2 lines and explain it to you. Just around 4 lines, we will have a look at that Abhang, which is of Santa Sena. Okay. Udhar tumi Santa, Maya Bapa Kripavanta. He says, you saints are so udhar. This is what Madam discussed with us. They're so udhar, so large-hearted, beyond imagination. You are greater than Maya Bapa, our parents. You're much more greater than Maya Bapa. Kevda kela upakara, kaya varnumi pamara, kaya varnumi pamara. How much upkar you have done to us, I have no words to explain it. And that is what Santa Sena is saying, and which in so many words Kapila Madam has discussed with us. Let us wind up. It is late enough. So let us wind up with this little Abhang. And thanks to everybody being present. And the greatest thanks going to Kapila Madam, who has been the stimulator of such a fantastic experience for all of us today. Thanks to everybody. Thanks once again. Thank you. Thank you.